Alright, moving on to the next bit, everyone. Private equity exit strategies देखो. So generally उसमें first line देखना in 5 years. Average holding period is 5 years. So first 3 to 5 years we are going to be having a drawdown period. So there is a committed capital, the fund has started. 3 to 5 years हम लोग पैसा draw कर रहे हैं, investments ढूंढ रहे हैं and investments कर रहे हैं. After that 3 to 5 years of investments have happened, then we invest, we remain invested for 5 years in the companies. And वो around 5 years का holding period के बाद में धीरे धीरे करके we start selling and liquidating companies. How do we liquidate? What are the different ways in which we can exit the investment? वो 5 ways दिया हुआ यहाँ पर देखना. पहला हुआ trade sale. Trade sale is sell a portfolio to a competitor or another strategic buyer. Like say for example, selling Myntra to Flipkart was a strategic sale. सोचो, Flipkart is a strategic buyer because अगर वो Myntra को acquire कर लेता है, so उसका एक fashion segment create हो जाता है. And there are a lot of synergies because उसका भी वही delivery, e-commerce startup and all. So it has a पूरा का पूरा clothing वाला part in terms of Myntra. Are you understanding? So selling Myntra. So say for example, एक P firm ने दूसरे P firm को. So एक P firm के पास Flipkart है, दूसरा P firm के पास Myntra है. ये इसको सेल कर दिया और ये फिर इन दोनों को कंबाइन करेगा, इन दोनों का सिनर्जीज आ जाएगा उसके पास. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दैट इज योर स्ट्रेटेजिक सेल, द फर्स्ट वन, ट्रेड सेल. सेकेंड वन इज एन आईपीओ. आईपीओ इज द बेस्ट वे टू एग्जिट अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट. आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब इनिशियल फर्स्ट टाइम पब्लिक में. सो से फॉर एग्जांपल जिस वे मारुति एंड ऑल का शेयर्स आर ट्रेडिंग, उबर का शेयर्स मार्केट में लिस्ट हुआ या फ्लिपकार्ट का शेयर्स मार्केट में लिस्ट हुआ. So you sell your shares in the public and the public pays money in order to subscribe to those shares. That is IPO, initial public offering. Large और obvious सा बात है, only if a company reaches a very high level and high scale तभी IPO कर सकते हैं. छोटा मोटा अमाउंट के लिए IPO नहीं निकाल सकते हो. Only when your company का valuation has become extremely high and you want to issue that shares. वो कोई नॉर्मल कोई XYZ PE फंड उसका पैसा नहीं दे पाएगा. You need to raise the company, raise the shares to the public at large. उतना बड़ा आपका स्टार्टअप हो गया है, then IPO is going to happen and that is obviously going to happen at a much later stage of your IPO, of your startup, of your venture. Next one is your recapitalization. Recapitalization थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में. It's not technically an exit. It's like a partial exit or it's like a move towards exit. Understand? I'm explaining this part. Suppose मेरे पास asset 10 का है, equity 4 का है and debt 8 का कितना 6 का है. ठीक है. Now what I'm going to do is I'll start giving myself huge dividends. Huge dividends मतलब मैंने पूरा का पूरा इसमें से बैंक अकाउंट से 2 निकाल करके अपने आप को डिविडेंड 2 दे दिया. अभी डिविडेंड 2 दोगे तो जनरली योर रिजर्व से माइनस हो जाता है. योर इक्विटी शेयर मतलब यार योर कैपिटल इज 4, आई एम सेइंग इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व्स वगैरह सब इसी में है. सो आपका इसमें से 2 माइनस होके खाली 2 बच जाएगा ना. योर ऑब्वियसली योर डेट इक्विटी रेशियो इज इंक्रीजिंग. दिस इज नॉट टेक्निकली एन एग्जिट. ये एग्जिट नहीं है बट एक तरीके से ना आप अपना ही बिजनेस से पैसा ज्यादा अपना पर्सनल अकाउंट में निकाल रहे हो. इट्स काइंड ऑफ इट्स अ मूवमेंट टुवर्ड्स एग्जिट. You are trying to take out as much as possible capital from your own business. It's not like you have sold the shares or you have exit the business. It's just that आप कंपनी को थोड़ा खोखला कर रहे हो. आप कंपनी से अपना जितना रिटर्न्स आ रहा है वो निकालो. मतलब मेरा इतना इन्वेस्टमेंट लगा, पहले अपना इन्वेस्टमेंट कंपनी से निकालो, फिर देखेंगे क्या करना है कंपनी का. Are you understanding the idea? Recapitalization देखना मैं लिखाऊंगा. The company issues debt to fund the dividend distribution to equity shareholders. It is not an exit. The fund still controls the company, but it is a step towards the exit. मतलब यहां पर तो और भी बोल रहा है कि काम करो आप डिविडेंड लो 5 का लेट्स से एंड अपने आप को एसेट 5 बढ़ा और अपने आप को डिविडेंड दे दो. सो से फॉर एग्जांपल इफ इक्विटी इज इक्वल टू 5, डेट इज इक्वल टू 5, एसेट इज इक्वल टू 10, बोलते हैं कि काम करो डेट को रेज करके 8 का डेट कर दो और 3 का अपने आप को डिविडेंड दे दो और लोन लो और अपने आप को डिविडेंड और बांटो. लोन लेके कंपनी से अपना पैसा निकालो. सोच के देखो, दिस इज नॉट अ वेरी गुड थिंग. That is recapitalization. So it's not exactly an exit, but it is a step towards exit. We will do this exit strategies and private equity and valuations in more detail in level 2. Level 2 का part में है ये. ठीक है. You just need to know the terms right now. Details बहुत ज़्यादा अभी level 1 में immediately नहीं लगेगा. Next one is your secondary sale. Secondary sale is one P firm to another. एक P firm दूसरे P firm को अगर बेच रहा है तो वो secondary sale हुआ. Now these people also have to do a lot of sales and all. कैसे होता है I'll tell you. Now suppose I've made an investment in a food delivery startup. अभी मेरा इन्वेस्टमेंट में उतना मजा नहीं आ रहा है.
अभी मैं क्या करूंगा, वो फूड डिलीवरी स्टार्टअप को एक XYZ पी फंड को बेचूंगा जो ऑलरेडी फूड पांडा, टाइनी हाउस, जोमैटो, स्विगी ये सब में थोड़ा थोड़ा स्टेक लेकर के रखा है. सो इन ऑर्डर टू एट टाइम्स इन ऑर्डर टू मेक देयर पोर्टफोलियोज नैरोअर, नहीं मेरा एक इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा हो गया है, अब आई डोंट वांट सच अ ह्यूज पोजीशन. बिकॉज से फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास आई मेड 10 इन्वेस्टमेंट्स ऑफ लेट्स से $10 million, उसमें से एक इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा होकर के $15 million का हो गया है और बाकी 5 का 5 वैसा ही है. सपोज माई टोटल पूल इज नाउ 20 million, बट 75% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज ओनली वन कंपनी. मे बी आई वॉन्ट टू लिक्विडेट हाफ ऑफ इट. सो अभी कैसे होगा, उतना बड़ा नहीं हुआ कि IPO निकाल दोगे. सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज वन पी फर्म इज सेलिंग टू अनदर पी फर्म उसका कंपनी. अच्छा मेरे पास ओला, एक काम कर आधा ओला तू ले ले, मतलब दे कीप ऑन डूइंग दैट. एंड ऑल्सो व्हाट हैपेंस आई विल टेल यू बिकॉज ऑफ दैट इज क्योंकि बिकॉज दीज पी फर्म्स ऑल्सो कीप सेलिंग कंपनीज बिटवीन ईच अदर, दे कीप रियलाइजिंग देयर प्रॉफिट्स. आज वैल्यूएशन बढ़ रहा है, वो तो खाली पेपर पे बढ़ रहा है, इन्वेस्टर को ट्रस्ट नहीं है आपके ऊपर. आप बोलोगे आई मेड अ 10 million का इन्वेस्टमेंट, इट इज 40 million. व्हाट्स द प्रूफ दैट इट इज 40 million? आधा बेचो 20 million पे तो 40 million का वैल्यूएशन हो गया ना. Are you getting the idea? If someone buys 5% stake in equity, stake in Flipkart, suppose एक XYZ कंपनी ने 5% stake Flipkart में खरीदा at $10 million, इसका मतलब क्या, टोटल कंपनी का वैल्यूएशन इज 200 million. हाउ डू यू गेट वैल्यूएशंस? पूरा फ्लिपकार्ट कोई बेचता नहीं है, पूरा का पूरा स्टार्टअप इज नॉट सोल्ड जनरली इफ इट्स अ वेरी बिग स्टार्टअप. I will buy 5% stake, I will increase, I will pay you $10 million to purchase 5% of yours. If 5% is equal to $10 million, then 100% is equal to how much? $200 million. So valuations and all are done this way. Are you getting the idea? Understanding this part? समझ में आ रहा है? तो सेकेंडरी सेल ऑल्सो हैपन्स. लास्ट वन इज द वर्स्ट वन, दैट इज योर राइट ऑफ योर लिक्विडेशन. कंपनी ऐसा फालतू हुआ, ऐसा बर्बाद हुआ कि आपको उसका चेयर्स, टेबल्स, कंप्यूटर्स अलग अलग करके पूरा का पूरा सेल करना पड़ा. यू आर नॉट एबल टू सेल द कंपनी एज अ होल. द कंपनी इज एब्सोल्युटली गॉन बैंकक्रप्ट. सो देन इन दैट केस यू हैव टू सेल ऑल द एसेट्स एंड ऑल ऑफ द कंपनी सेपरेटली. जितना पैसा आएगा उससे लायबिलिटीज क्लियर करो, उसके बाद में अगर कुछ एक्स्ट्रा बचा तो घर लेकर के जाओ. टेल मी, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? Next move to private equity potential benefits and risks. Second line mark करना, higher on average than overall stock returns. उसी लाइन में less than perfect correlation. Next to next line diversification benefit. अच्छा higher on average than overall stock को 1 mark करो, diversification को 2 mark करो. Next line, standard deviation of equity has been higher than standard deviation of equity index returns. Next line, survivorship bias and backfill bias. मैं समझा रहा हूं सब चीज. Next line, revalued infrequently, therefore standard deviations and correlations bias downwards. Just mark the points. I'm explaining each and every line. All right. So basically what we are saying first is कि when you're looking at the why should we invest in private equity? So when we are looking at different categories of alternate investments, there needs to be a justification कि real estate में पैसा लगाएं तो क्यों लगाएं, commodity में पैसा लगाएं तो क्यों लगाएं. So the first thing is कि equity का, private equity का returns is higher than the returns of equity. So therefore we should invest. Because private equity का investments का returns are going to be much higher as compared to the equity का returns. But then looking at just this, you cannot make investments because standard deviation of private equity is also higher than the private equity of this and काफी high है, काफी high है. So private equity is much more risky as compared to the normal equity index. Suppose S&P या कोई भी एक equity index लोगे तो उसके comparison में you will see that the private equity is pretty more risky. Standard deviation. दूसरा, standard deviation not the correct measure of risk, because we know VC is very skewed. स्टैंडर्ड डिविएशन तो तब मेजर करोगे जब आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. जब डेटा ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड है तब स्टैंडर्ड डिविएशन वर्क करेगा. But our data, private equity में there could be a huge number of losses and there could be very small number of extremely positive high return. The data is skewed, therefore standard deviation is not the right measure. Standard deviation बताता है कि एवरेज के ऊपर नीचे डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है. But do you have an extreme positive or an extreme negative outlier? The standard deviation does not give us that data. That is given by skewness.
So standard deviation is not the correct measure of risk over here. और स्टैंडर्ड डिविएशन यूज भी करेंगे तो भी स्टैंडर्ड डिविएशन प्राइवेट इक्विटी का हाई आएगा, तो रिटर्न ज्यादा दे भी रहा है तो क्या हुआ, रिस्क भी तो ज्यादा है. बट द पॉइंट इज दैट कोरिलेशन बिटवीन द रिटर्न्स आर ऑन द लोअर साइड. सो कोरिलेशन बिटवीन प्राइवेट इक्विटी एंड इक्विटी इज रिलेटिवली लो. कोरिलेशन लो मतलब प्राइवेट इक्विटी बढ़ेगा तब मतलब इक्विटी बढ़ेगा फिर पी भी बढ़ेगा, इक्विटी गिरेगा पी भी गिरेगा, ऐसा जरूरी नहीं है. अगर ऐसा होता देन बोथ ऑफ देम आर मूविंग अप एंड डाउन टुगेदर, सो देन द पोर्टफोलियो विल बी टू मच ऊपर नीचे. बट यहाँ कोरिलेशन आलो मतलब अगर इक्विटी बढ़ता है कभी पी गिर रहा है कभी बढ़ रहा है पता नहीं, अगर पी इक्विटी गिरता है पी में भी इंक्रीजिंग, सो देयर विल बी अ लिटिल बिट ऑफ बैलेंसिंग आउट इफेक्ट. So when you combine the two together, the portfolio may not be too much risky. The portfolio का risk might be relatively low. So therefore, sigma P might be little low. Diversification benefit. मैंने इनफैक्ट फर्स्ट क्लास में जब पोर्टफोलियो समझाया था तब ये कॉन्सेप्ट भी बताया था. मैं इंट्रोडक्शन में जब सिलेबस समझा रहा था देन ऑल्सो हैड डिस्कस दिस. दिस सिग्मा पी इज कवर्ड इन प्रोबेबिलिटी का चैप्टर इन क्वांट्स एंड ऑल्सो इन योर पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो इज ऑल अबाउट सिग्मा पी कैलकुलेशंस एंड ऑल. सो यूल हैव मोर डिटेल्स ऑन दैट लेटर. अपने अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, वी आर अल्टीमेटली सेइंग दैट नो वी शुड नॉट इन्वेस्ट ओनली इन फिक्स इनकम, ओनली इन इक्विटी. फिक्स इनकम भी है, इक्विटी भी है, कमोडिटी भी है, रियल एस्टेट भी है, प्राइवेट इक्विटी भी है, हेज फंड भी है. सो वी आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. क्यों, एक बढ़ रहा है एक गिर रहा है, बैलेंस आउट होकर के मेरा पोर्टफोलियो काफी बैलेंस, मतलब देयर विल बी लेस वॉलेटिलिटी इन द पोर्टफोलियो, राइट. इफ एवरीथिंग इंक्रीजेस एट द सेम टाइम एंड डिक्रीजेस एट द सेम टाइम देन माय पोर्टफोलियो विल मूव लाइक दिस. But if something is increasing, something is decreasing, they balance out each other, my portfolio will be moving like this. The second option is better, less risky. So even though the standard deviation of private equity might be higher, but still the correlation low है, equity और private equity exactly same तरीके से move नहीं करेगा, तो therefore totality में अगर portfolio को देखेंगे तो शायद movement कम होगा. वो balancing out effect का बात कर रहा है. So diversification is there. Tell me, are you understanding this? So yes, returns are high, but the standard deviation is higher, but then still the correlation is lower, so diversification benefit is there. But at the same time, standard deviation is not the true measure of risk in terms of, in case of private equity. Private equity के केस में खाली standard deviation देखना is not a good measure because VC का returns are skewed. बोलिए, till here this is fine. The next part that I was discussing was survivorship bias and backfill bias. सर्वाइवरशिप बायस, बैकफिल बायस हेज फंड में नहीं समझाया था ना, समझाया अभी तक, कहां समझाया था हेज, अच्छा हाँ स्टार्टिंग में था सर्वाइवरशिप एंड बैकफिल. सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू द आइडिया इज वेरी सिंपल दैट व्हेन यू आर लुकिंग एट स्टॉक्स एंड ऑल दे कीप ऑन रिपोर्टिंग देयर परफॉर्मेंसेस ऑन अ रेगुलर बेसिस. तो स्टॉक का तो आपको कोई भी स्टॉक का चाहिए तो मिनट बाय मिनट का आपको, सेकंड बाय सेकंड का आपको प्राइसेस मिल जाएगा. बट वेंचर कैपिटल हेज फंड्स एंड ऑल दे डू नॉट हैव सो मच ऑफ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स. अमीर लोग का म्यूचुअल फंड हेज फंड बताया था. प्राइवेट इक्विटी में दे डोंट हैव लाइक म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल का तो बहुत रेस्ट्रिक्शंस रहता है उनके ऊपर, तो क्योंकि कॉमन पब्लिक का पैसा लगा हुआ है तो उनके ऊपर देयर आर लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस कि व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू गिव अ रिपोर्ट फॉर. सो यू हैव टू कीप ऑन रिपोर्टिंग. म्यूचुअल फंड्स का जब बात कर रहे हो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ, यू हैव अ लॉट ऑफ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स. प्राइवेट इक्विटी फंड्स का रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स नहीं है. ओनली दोज पी फंड्स हु आर अर्निंग वेरी गुड, हु आर जनरेटिंग वेरी गुड रिटर्न, वो लोग डिस्क्लोजर्स देंगे, देखो मेरा फंड महान, आओ इन्वेस्ट करो मेरे. एंड ऑब्वियस बात है ना, पब्लिसिटी नहीं करेगा, दिखाएगा नहीं कि मेरा फंड कितना अच्छा है, तो लोगों को कैसे पता चलेगा. एंड देन हाउ विल दे जनरेट हायर इंसेंटिव फी. वो तो बोलेगा नहीं हम तो 25% इंसेंटिव फी लेंगे, लेना तो लो, नहीं इन्वेस्ट करना तो जाओ, और भी लोग खड़े हैं. इफ यू आर जनरेटिंग गुड रिटर्न्स पीपल विल बी कमिंग टू यू ना. So only the good funds will publicize, the bad funds will not publicize only. So ultimately your returns are biased. आपका जो सैंपल है, सोचो अभी आपके सैंपल में आपने कौन सा पी फंड्स लिया है, वो पी फंड्स लिया है जिसका डेटा अवेलेबल है. कौन से पी फंड्स का डेटा अवेलेबल है, जो अच्छा परफॉर्म किया है, जो खराब परफॉर्म किया है, जो बंद हो गया पी फंड्स, उसका डेटा ही अवेलेबल नहीं है. तो इन योर सैंपल इज नॉट, योर सैंपल इज बायस्ड टुवर्ड्स दोज फंड्स हु आर सर्वाइविंग. थिंक अबाउट इट, because I don't have data for the funds that have been shut down. So ultimately I'm calculating the returns and all the averages, standard deviations and all for only those funds which are surviving. That is survivorship bias. Obvious सा बात है, अगर जो फंड्स बंद हो गए होते उनका डेटा अवेलेबल होता, उनको भी इंक्लूड करते तो अपना फंड का रिटर्न हाई आता कि लो आता, लो आता. So that is your survivorship bias. And backfill bias is, आज मेरा फंड अगर लॉन्च हुआ है, today I will not start reporting return. फर्स्ट 3, 4, 5 ईयर्स तो अपना ड्रॉडाउन वाला टाइम है, उसके बाद फंड का परफॉर्मेंस पता चलेगा. बट 5th या 6th ईयर में व्हेन यू सी ओके माय फंड इज अ बम्पर फंड, देन यू विल रिपोर्ट ऑल द लास्ट 5 ईयर्स का डेटा ऑल्सो. सो इन 2020 सपोज यू आर रिपोर्टिंग 2019, 18, 17 एंड ऑल का पहले का डेटा,
तो 2017 में तो डेटा अवेलेबल नहीं था 2017 का, वो तो आपने 2020 में आकर के 2017 का डेटा भी डिस्क्लोज किया है. बट व्हेन आई हैव डिस्क्लोज मेरा लास्ट 5 years का डेटा, यू हैव पुट ऑल द 5 years का डेटा इन योर इंडेक्स एंड ऑल. सो दैट इज योर बैकफिल बायस. ये भी डिस्कस कर लिए थे हम लोग. सो दीज बायसेस आर देयर एंड यू नीड टू बी केयरफुल, यू नीड टू बी अवेयर अबाउट दीज थिंग्स. बोलिए, आर यू अंडरस्टैंडिंग? द नेक्स्ट पोर्शन इज इनफ्रीक्वेंटली. कुछ एक वर्ड दिया हुआ था, रिवैल्यूड इनफ्रीक्वेंटली दिख रहा है. रिवैल्यूड इनफ्रीक्वेंटली एंड देयरफॉर स्टैंडर्ड डिविएशंस एंड कोरिलेशंस आर बायस्ड डाउनवर्ड्स. अंडरस्टैंड दिस, ध्यान दो, कई जगह लगेगा. से फॉर एग्जाम्पल आपका फंड ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है. सो योर फंड का वैल्यू यहां पर इतना टाइम पे ऐसा था, इतना टाइम पीरियड पे आकर के ऐसा हुआ. नाउ व्हाट हैपेंस इज इफ आई वांट टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन, सपोज 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year, आपका फंड का एवरेज जो भी होगा, डोंट यू थिंक योर एक्स शुड बी दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, एंड देन देयर इज अ सडन इतना बड़ा क्या गैप, तो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी वेरी हाई कि सडन एक मूवमेंट हुआ है x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर करके. बट व्हाट पीपल डू इज दे डू अप्रेजल बेस्ड वैल्यूएशन. मतलब क्या करते हैं, अभी प्राइवेट इक्विटी फंड का शेयर प्राइस का प्राइसेस, डू यू नो इट इज अवेलेबल इन द मार्केट? नो. सो व्हाट पीपल डू इज वो लोग अप्रेजल करते हैं. मतलब अप्रेजल मतलब पीपल लाइक यू नो मे बी अ वैल्यूएशन कंसल्टेंट लाइक मी, सो वी विल डू वैल्यूएशन फॉर दिस कंपनी. सो वी विल से कि प्रोजेक्शंस एंड ऑल के बेसिस पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कंपनी टुडे. सो वैल्यूएशन एक्सपर्ट क्या करेगा, उसका वैल्यूएशन ऐसा 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 करके दिखाएगा, तो वो धीरे धीरे उसको रेस करेगा. तो एवरी मंथ योर रिटर्न इज दिस मच, दिस मच, दिस मच, दिस मच. तो आपका रिटर्न दिस 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 है, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा होगा, या ऐसा 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 एंड एक दिन का ऐसा वैल्यू, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन है ज्यादा होगा सेकंड वाले का. सो बेसिकली अ चेंज दैट इज हैपनिंग सडनली, यू आर स्प्रेडिंग इट अक्रॉस द पीरियड, यू आर समथिंग दैट इज वैल्यूड इनफ्रीक्वेंटली. आप उसको अप्रेजल बेस पे वैल्यूएशन करके आप उसका रिटर्न्स को जो इंक्रीज या डिक्रीज है उसको स्प्रेड आउट कर दे रहे हो बहुत ज्यादा. इवन इफ यू लुकिंग एट द रियल एस्टेट वैल्यूएशंस टुडे इन द मार्केट, रियल एस्टेट का वैल्यूएशन एकदम फ्लैट है, अचानक से बढ़ेगा, लेकिन लोग अप्रेजल बेसिस पे उसको बेचते नहीं है. टुडे इफ यू वांट टू बाय अ हाउस, यू विल नॉट बी एबल टू बाय अ हाउस, द प्राइसेस आर हाई. यू वांट टू सेल अ हाउस, यू विल नॉट बी एबल टू सेल अ हाउस, द प्राइसेस आर लो. बाइंग एंड सेलिंग इज नॉट हैपनिंग इन द रियल एस्टेट मार्केट टुडे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? बट लोग अप्रेज करके उसका पैसा बढ़ाते जा रहे हैं, पेपर पे पैसा बढ़ा रहे. बेच के दिखाओ ना प्रॉपर्टी को, नहीं बिकेगा. पीपल आर जस्ट रेजिंग मनी ऑन पेपर, दे आर स्प्रेडिंग अक्रॉस द रिटर्न. उसको देख के आपको लगता है यार रियल एस्टेट तो बहुत अच्छा रिटर्न है, बहुत अच्छा एसेट है, कितना कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट दिखा रहा है. बट वैसा नहीं होता. देयर आर साइकिल्स वेयर द रियल एस्टेट इज लाइक दिस, देन इट इज लाइक दिस, देन इट इज लाइक दिस. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइकिल्स वाला पार्ट. एनीवेज, आई थिंक आई एम डेविएटिंग अ लिटिल. द ऑब्जेक्टिव इज वेरी सिंपल. आपका जो 10 का रिटर्न है, सपोज आपका 1 1 1 और अचानक से 6 हुआ, और आप क्या कर रहे हो, 2.5 2.5 2.5 2.5 का रिटर्न दिखा रहे हो. तो 2.5 2.5 2.5 2.5 का एसडी इज लो, 1 1 1 एंड देन 6 का एसडी इज वेरी वेरी हाई. सो पी फर्म्स में सिंस इट इज ट्रेडेड इनफ्रीक्वेंटली, यू आर ओवरस्टेटिंग द, क्या बोलते हैं, यू आर ओवरस्टेटिंग द स्टैंडर्ड, यू आर अंडरस्टेटिंग द स्टैंडर्ड डिविएशन. आइडियली यू शुड बी कैलकुलेटिंग एसडी यूजिंग 1 1 1 1 6. You are calculating using SD 2.5 2.5 2.5 2.5. Are you understanding? 2.4 2.5 2.7 का SD बहुत कम आएगा, 1 1 1 and 6 का SD बहुत हाई आएगा. And the second thing is the reality and the first thing is what you are doing. So your standard deviation and correlations का calculation understate होगा because of this part, because of this smoothing that you are doing. ये concept समझिए अच्छे से, because real estate में भी ये concept लगेगा. We are doing smoothing of the return. Instead of showing that 1 1 1 1 6 का thing, you are spreading across that return over a period of time rather more evenly. So that is, देखो, revalued infrequently है, reported SD and correlation may be biased downwards. क्यों biased downwards? उसको put an arrow and write, since appraisal is done and the movement is spread across relatively smoothly, or the difference is spread across the period more smoothly since appraisal is done and the returns are distributed smoothly, or क्या बोला था, spread across smoothly. The returns are spread across smoothly. उसके कारण वो bias downward हो रहा है. The returns are being spread across smoothly. Next paragraph I've already explained. देखो, skilled fund managers are very important. क्यों? Next line, top quartile and bottom quartile का difference is significant.
सो बताया था ना, when you're looking at let's say top 25%, so we can break into 4 quartiles, 1 2 3 4, and bottom 25%. अगर नॉर्मल इक्विटी मैनेजर्स का रिटर्न देखोगे, मे बी दिस गाय का एवरेज रिटर्न इज 15% एंड इसका एवरेज रिटर्न इज लेट्स से 7%. तो बेस्ट टू बेस्ट मैनेजर एंड वर्स्ट 25% मैनेजर्स का गैप इज कितना? 8% ओनली. So if you invest in the top 25% managers, you will get 8% extra return, let's say. And वही चीज PE में अगर देखोगे तो उनका एवरेज रिटर्न आएगा 35%. And PE में बॉटम देखोगे तो उनका एवरेज रिटर्न आएगा let's say -5%. There is a gap of 40% का रिटर्न when you're looking at the top and the bottom percentile managers, bottom quartile managers. That is why the skilled manager becomes an extremely important asset for any fund. म्यूचुअल फंड का बेस्ट और वर्स्ट म्यूचुअल फंड में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा रिटर्न्स का. मतलब टॉप 20 बॉटम 20 म्यूचुअल फंड्स देखो, टॉप टू बॉटम म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न्स कंपेयर करिए, इट विल नॉट बी वेरी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट. बट टॉप एंड बॉटम PE फंड्स का रिटर्न्स आर गोइंग टू बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट. दैट मीन्स skilled manager is very important. The manager becomes extremely important in a PE fund. Tell me, getting the idea? Everyone sure? Comfortable यहां तक? नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं. प्राइवेट इक्विटी ड्यू डिलिजेंस के साइड में लिख दो गो थ्रू. नाउ व्हाट इज ड्यू डिलिजेंस? सपोज यू वांट टू बाय अ हाउस. आप क्या क्या चीज चेक करते हो? बिल्डर कौन है, क्वालिटी कैसा है, अमेनिटीज क्या है, स्क्वायर फुट एरिया क्या है, लीगल इश्यूज तो कुछ नहीं है ना लैंड का, लोकेलिटी कैसा है, आसपास के लोग कैसे हैं, पेपर वर्क ठीक है ना, क्या क्या बना करके दे रहा है घर के अंदर. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, देयर आर लॉट ऑफ चेकलिस्ट, साउथ ओपन है कि नहीं. सो देयर आर लॉट ऑफ चेकलिस्ट दैट यू हैव. दैट इज ड्यू डिलिजेंस. सो व्हेनेवर यू वांट टू बाय समथिंग, यू वांट टू बाय अ फोन, यू विल डू अ प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस. रेटिंग्स क्या है 3 अलग वेबसाइट पे, फोन वर्थ इट है क्या, कंपेरेबल फोन्स को चेक करोगे इसी प्राइस में, इसी स्पेसिफिकेशन में क्या प्राइसिंग है फोन्स का, क्वालिटी कैसा है, ड्यूरेबिलिटी कैसा है, सेलिंग प्राइस once you sell the phone again, so उसका क्या बोलते हैं उसको, रीसेल प्राइस कैसा है. So you are going to be figuring out all these things. So whenever you want to make an investment, you do your due diligence. Which mutual fund to buy, manager कौन है उसका, average return कैसा दे रहा है पास्ट में, किस टाइप का इन्वेस्टमेंट करता है. So you have a lot of list, you have a list of things that you need to, you have a checklist that you need to check, that you need to tick in order to make an investment. Similarly with private equity or a hedge fund or a real estate, we will have our due diligence to be done. स्पेशली इन प्राइवेट इक्विटी, बिकॉज किस टाइप का इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, किस टाइप का स्ट्रैटेजी उनका, फंड मैनेजर कैसा है, फंड का टीम कैसा है, फंडामेंटल्स कैसा है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू इवैल्यूएट बिफोर यू पुट इन योर मनी इन प्राइवेट इक्विटी. इट्स नॉट अ 100 or a 200 rupee का पॉपकॉर्न दैट यू आर बाइंग. यू आर पुटिंग millions of dollars in a fund, so obviously you need to evaluate all these things very diligently. That is your due diligence. So every single asset class में before we make investment, we do our due diligence. अब ड्यू डिलिजेंस ना टुवर्ड्स दी एंड वी विल हैव अ कॉमन ड्यू डिलिजेंस टाइप का एक LOS है, जहां पर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करने के लिए व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स वी चेक, वो दिया हुआ है. पी फंड में भी कुछ कुछ दिया, विल जस्ट गो थ्रू इट. उतना कुछ मगअप टाइप का नहीं है, इट्स वेरी इजी स्टफ, यू जस्ट नीड टू गो थ्रू दैट पार्ट. सेकेंड लाइन देखना, हाउ इंटरेस्ट रेट्स अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल में अफेक्ट. क्यों बोल रहे हैं इंटरेस्ट रेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल? अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल के ऊपर में अंडरलाइन करके लिखना, सिंस कमिटेड कैपिटल विल बी ड्रॉ डाउन, since committed capital will be drawn down. आज आपने कमिटमेंट तो कर दिया कि मैं $20 million फंड में डालूंगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड. अब से फॉर एग्जांपल समवन इन्वेस्टेड इन द ईयर ऑफ 2007, उसने कमिटमेंट किया $20 million का. अभी 2007 में तो खाली $5 million ड्रॉन डाउन था. 2008 का क्राइसिस के टाइम में फंड बोलता है कि नहीं अभी $10 million निकाल के दो, एंड यू हैव टू मेक द पेमेंट बिकॉज यू हैव कमिटेड दैट कैपिटल. कैसे निकाल के दोगे? So you have to see whether you will have that availability of capital in the future going forward or not. उसके accordingly you'll have to make commitment for the capital. Next line, choice of manager, GP, very important. Why? Because top and bottom quartile PE manager में there's a huge difference. So the choice of manager, manager कैसा है वो देखना बहुत जरूरी है. Next to next line, operating financial experience, valuation methods, लीगल स्ट्रक्चर, फीस वगैरह का कौन कितना चार्ज कर रहा है, कितना AUM का फीस है, कितना हाई वाटरमार्क है कि नहीं, क्लॉबैक है कि नहीं, नोटिस पीरियड है कि नहीं, लॉकअप पीरियड है कि नहीं, ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस वी विल सी. ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एक्सपीरियंस, आई टोल्ड यू मैनेजर किस बेसिस पे कमिटमेंट लेता है कैपिटल का.
that last 15 to 20 years they've got so much experience in the financial industry, they have earned these kind, ये म्यूचुअल फंड में काम किया है, ऐसा रिटर्न अर्न किया है, उसके बेसिस पे दे रेज मनी, राइट? सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. ऑपरेशनल एक्सपर्टीज, फाइनेंशियल एक्सपर्टीज कैसा है मैनेजर का? ऑपरेशनल एक्सपर्टीज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बिकॉज यू विल मेक इन्वेस्टमेंट इन वीसी एंड ऑल. उनको गाइड भी तो करना होगा, खाली पैसा देने से थोड़ी चल रहा है. एलबीओस को भी तो आपको गाइड करना होगा. वी डिस्कस लेवरेज बायआउट्स. So when you're guiding these people, not only financial but also operational expertise is needed. So you have to evaluate all these things before you make an investment in a private equity firm. बोलिए 100% comfortable till here? Sure. Last part खाली देख लो. Private company valuation है, right? यही है ना? Private company valuation, there are 3 methods given to you over here. Market comparables approach, DCF approach and asset based approach. Now these 3 I will just discuss very briefly with you guys right now. Once you are done with equity subject का last chapter equity valuations है, उसके बाद में you will understand this 100%. Now equity कराने के लिए alternate investment कराना पड़ेगा. So I don't have an option. Like there will be one portion जहाँ derivatives का application है. So level 1 में you will have this issue. So once your entire syllabus is completed, then there will be lot of places which will get even better. And I'll keep on telling you कि ये वाला चीज यहाँ पे करेंगे, उसके बाद में ये वाला चीज ज्यादा क्लियर होगा. There is no option because equity के first couple of chapters में hedge fund private equity है. So I have to anyways do it. मतलब आप समझ रहे हो मेरा प्रॉब्लम? So anyways I'll give you a rough idea over here, but इसका numerical discounted cash flow का there will be number of sums we will do, number of methods and sums. So let me explain the idea to you. Sums होगा आपका equity chapter में. Now see, there are broadly 3 methods of valuation that we are looking at over here. तो पहला तो अपना वैल्यूएशन में DCF पहले बताता हूँ, कोई भी चीज का वैल्यू इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज. कोई भी चीज का वैल्यूएशन, अगर मेरे को फ्यूचर में आप 100, 200, 50 देंगे, 250, 100 देंगे इन द इयर्स 1, 2, 3, हाउ मच विल आई बी विलिंग टू पे यू टुडे? इन तीनों का प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा. दिस the PV of all these 3 cash flows is worth this much, so I will be willing to invest this much in your business today. कोई भी चीज का वैल्यूएशन इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज. 100 का आज का वर्थ क्या, 250 का आज का वर्थ क्या, 100 का आज का वर्थ क्या. हाँ, आई अंडरस्टैंड दैट इफ यू आर मेकिंग अ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट इट इज वेरी रिस्की. So instead of asking a normal 8-10% kind of a return, I'll maybe ask for a 25% return. तो इसको 25% रेट पे डिस्काउंट करेंगे. अब ये मत सोचिए कि हर चीज का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू सेम होगा. बैंक में पैसा डालेंगे तो 7% पे डिस्काउंट करेंगे. अब एक इन अ लार्ज कैप कंपनी इफ यू आर पुटिंग योर मनी इन a Reliance or something, maybe you'll be demanding a 12-14% kind of return. But if I'm investing in a new company, of course the risk is more. So for the same expected cash flow, you'll be willing to pay less amount of money for a startup. अगर बैंक में कोई यही कैश फ्लो देगा, मैं ज्यादा पैसे दूंगा क्योंकि रिस्क कम है. You will discount the cash flow with let's say 8%. For a Reliance, you'll discount it at let's say 14%. For an XYZ new company, you'll discount it at let's say 25%. And that is why प्राइवेट कंपनी को सस्ता दे, मतलब सस्ता में मिलेगा मेरे को, ज्यादा रिस्क लेंगे, ज्यादा रिटर्न का स्कोप है, बट देयर इज मोर रिस्क एज वेल. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो वन वे ऑफ डूइंग वैल्यूएशंस इज बेस्ड ऑन फ्यूचर कैश फ्लोज. दैट ओके, इफ आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी टुडे एट 500, तो मेरे को यहाँ पे कितना 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 मिलेगा. Obviously, if the PV of inflow is more than outflow, only then I will invest positive NPV projects. If my IRR, the rate of return generated by the project, is more than the return required from the project, then only I'll invest in a project. Are you understanding this? Make sense? Obviously, right? So ये investments, कोई भी चीज का valuation करने के लिए, it's the PV of future cash flows, the value of the project. So say for example, इन तीनों का PV निकल के आया 300, and अगर ये private company को I can purchase at less than 300, only then I will purchase. PV inflow minus outflow तभी positive होगा ना? So the valuation of the company has to be $300 million. So I'll only purchase this company if it is valued at less than equal to $300 million. Otherwise, I will not invest. Boli, are you guys understanding? So discounted cash flow is the most basic way of doing any valuation. कोई भी चीज का आज का valuation is the PV of future cash flows. Of course, it's not that easy to forecast this 100, 250, 100. आपको आज का बैलेंस शीट पीएल अकाउंट, पिछले सालों का बैलेंस शीट पीएल अकाउंट, उसके बेसिस पे आपको फ्यूचर फोरकास्टेड बैलेंस शीट पीएल अकाउंट, फ्यूचर कैश फ्लोज फोरकास्ट करना, दैट पार्ट विल बी डन इन एफआरए. That how do you study the annual reports, make projections about the annual reports, and then you do the valuation today.
So first we have to do financial reporting analysis in order to understand how to do the projections. Once the projections are done, then how to do the valuation of equity. We'll do it in equity. बोले, are you understanding? And level 2 में एक अलग से चैप्टर है जहां पर प्राइवेट कंपनी का वैल्यूएशन कैसे करते हैं. एक हो गया पब्लिक कंपनी लाइक रिलायंस का वैल्यूएशन करना, एंड एक प्राइवेट कंपनी है विच इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी, उसका वैल्यूएशन अलग तरीके से होगा. सो वील डू दोज थिंग्स ऑल्सो एज वी मूव फॉरवर्ड. Are you understanding? So one method of valuing is PV of future cash flow. Value of anything is equal to the present value of future cash flows. आज कोई चीज खरीदेंगे तो उससे फ्यूचर में क्या कैश फ्लोज आएगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी. Are you understanding this? Now obviously when will you use this method? When the future cash flows are forecastable. दिख रहा है कि आज इतना सेल है, फ्यूचर में इतना सेल्स हो सकता है, इतना ग्रोथ हो सकता है, इतना कॉस्ट लगेगा, इतना इनकम आएगा, तब जाकर के जब कैश फ्लोज फोरकास्ट कर पाओगे. व्हेन यू हैव कैश फ्लोज दैट कैन बी फोरकास्टेड, देन यू कैन डू द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन पीवी ऑफ सीएफ्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज. लेट्स से द फोरकास्टिंग is not available, the forecasts are not to be made, it's not possible to make forecast for the future cash flow. Suppose नहीं possible है, अब क्या करें? Suppose you are not able to make cash flows or forecast for future cash flows, then what do you do? Let's say for example I have a few similar companies. Let's say मैं जिस कंपनी का वैल्यूएशन कर रहा हूँ, there are companies, there are certain public, say for example I'm doing valuation of Flipkart का ही कर रहे हैं. अभी Amazon लिस्टेड है यूएस में, अभी अलीबाबा लिस्टेड है चाइना में. सो आई हैव गॉट अ फ्यू कंपनीज दैट आर अवेलेबल. आई नो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज कि अगर यूएस कंपनी को बेस करके इंडियन कंपनी का वैल्यूएशन करना, वो सब इश्यूज है, मेरे को पता है, वो सब में अभी नहीं आ रहा है. सपोज देयर आर कंपनीज अवेलेबल, मैं क्या करूंगा, ये क्या था, Amazon था, Amazon, अलीबाबा, एंड लेट्स से देयर इज अनदर XYZ ओवर हियर. ठीक है, कंपनी 3. ठीक है, मैं क्या किया, मैं इन कंपनीज का प्राइस अर्निंग रेशियो निकाला, मैं इस कंपनी का प्राइस सेल्स रेशियो निकाला एंड प्राइस बुक वैल्यू रेशियो निकाला. लेट्स से आई एम वर्किंग विद 3 रेशियोज. प्राइस अर्निंग मतलब Amazon का प्राइस इज ट्रेडिंग एट लेट्स से 100 इन द मार्केट एंड कंपनी का इनकम 2 था. इफ द कंपनी का अर्निंग्स इज 2 एंड द कंपनी का शेयर प्राइस इज 100, मतलब द कंपनी का P रेशियो इज 50 टाइम्स. फॉर एवरी $1 दैट द कंपनी अर्न्स, द कंपनी इज वैल्यूड 50 टाइम्स ऑफ दैट. 2 का इनकम पे 100 का वैल्यूएशन है, मतलब फॉर एवरी $1 दैट द कंपनी अर्न्स, द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी इज 50 टाइम्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इज एवरीबडी विथ मी? सिमिलरली मैंने इनका भी P रेशियो निकाला, इनका प्राइस टू सेल्स रेशियो निकाला, प्राइस डिवाइड बाय सेल्स, प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी निकाला. राइट, ये रेशियोज अपने करेंगे वापस FRA में एंड इक्विटी में वापस. आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी रफ आइडिया, जस्ट गेट अ वेरी सुपरफिशियल आइडिया फ्रॉम दिस, बिकॉज इसके ऊपर सम्स नहीं आएगा. जस्ट गेट अ वेरी ऊपर का आइडिया, इसका सम्स इक्विटी में करेंगे. तो प्राइस टू सेल्स रेशियो कि से फॉर एग्जांपल कंपनी का शेयर प्राइस तो 100 ही था, लेकिन उसने 20 का सेल्स जनरेट किया, तो द प्राइस टू सेल्स रेशियो इज 5. सिमिलरली मैंने इनका भी कैलकुलेट किया. अभी व्हाट आई विल डू इज आई वांट टू डू द वैल्यूएशन ऑफ फ्लिपकार्ट. राइट, अभी सपोज मैंने इसका एवरेज लिया, निकल के आया 40, इसका एवरेज लिया, निकल के आया 3.5, इसका एवरेज लिया, निकल के आया 12. What I will do is फ्लिपकार्ट का मेरे को प्राइस नहीं पता ऑब्वियसली बिकॉज इट्स नॉट अ लिस्टेड कंपनी, बट आई नो दैट फ्लिपकार्ट का इनकम तो पता है मेरे को, इनकम 2 है लेट्स से, और लेट्स से 1 है. फ्लिपकार्ट का सेल्स इज लेट्स से 20 और लेट्स से 10 करते एक बार. फ्लिपकार्ट का दिस इज लेट्स से 3, बुक वैल्यू इज इक्वल टू 3. ये तो पता चलेगा, कोई भी प्राइवेट कंपनी का, कोई पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप का भी पता होता है कि उसने कितना इनकम किया, कितना सेल्स किया. दैट इज अवेलेबल, द प्राइस इज नॉट अवेलेबल. सो ऑन एन एवरेज इफ द ई-कॉमर्स कंपनीज का वैल्यू इज 40 टाइम्स ऑफ योर इनकम, तो फ्लिपकार्ट का इनकम अगर 1 है या 1.1 है, तो फ्लिपकार्ट का वैल्यूएशन कितना होना चाहिए? 44. इफ कंपनीज ऑन एन एवरेज पे यू 40 टाइम्स ऑफ इनकम, अगर ई-कॉमर्स कंपनी का बात करें, सिमिलर इंडस्ट्री का, so normally in the e-commerce industry if the companies का value, the price of the company is 40 times that of the income, तो Flipkart का income अगर 1.1 है तो उसका value कितना होना चाहिए? 44 times होना चाहिए. अगर Flipkart normally company is 3.5 times, sales का 3.5 times उसका value होता है, Flipkart का अगर sale 10 है तो उसका value 35 होना चाहिए. Normally company for every $1 book value of the company, the price of the company is 12 times, तो Flipkart का अगर book value 3 है तो उसका value कितना होना चाहिए? 36. Now I can take the average of 3 and I can say कि relative to the similar companies in the industry, Flipkart का valuation should be average of these 3. मैं बहुत ही रफली बता रहा हूँ कि ये कंपनी का रेशियोज ऐसा है तो मेरी कंपनी का रेशियो भी वैसा ही होना चाहिए, बिकॉज वी आर इन द सेम इंडस्ट्री. दैट इज रिलेटिव, ये क्या मार्केट कंपेरेबल्स अप्रोच, रिलेटिव वैल्यूएशन भी बोलते हैं इसको.
we'll do it in equity. मार्केट कंपेरेबल समझ में आ रहा है कि मार्केट में बाकी डेटा, बाकी कंपनीज के कंपैरिजन के हिसाब से माई कंपनी डिजर्व्स दिस वैल्यूएशन, सो दैट इज योर मार्केट कंपेरेबल्स अप्रोच. दैट इज योर मार्केट कंपेरेबल्स अप्रोच. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Everyone comfortable? And the last valuation method is your asset based approach. Asset based approach भगवान करे यूज करने का जरूरत नहीं पड़े. Asset based approach मतलब कंपनी इतना बेकार है कि ना तो उसका कंपैरिजन करके वैल्यूएशन पॉसिबल है, ना इधर DCF करके पॉसिबल है. वी कैन नॉट मेक फोरकास्ट ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज एंड डू द वैल्यूएशन टुडे. हाँ, जरूरी नहीं है एक्चुअली. एक तरीके में कंपनी का एसेट बेस्ड माइट बी अ गुड आइडिया. एसेट बेस्ड अप्रोच मतलब एसेट्स का फेयर वैल्यू निकालो, नॉट द हिस्टोरिकल वैल्यू. मतलब यू बॉट लैंड एंड बिल्डिंग एट 10 मिलियन, अभी उसका वैल्यू 15 है, तो 15 पे वैल्यू करने का. तो सारा एसेट को अगर आज बेचेंगे तो कितना आएगा, लायबिलिटी सेटल करेंगे तो कितना जाएगा, बचेगा कितना इक्विटी. दैट इज अ वैल्यूएशन. दैट इज योर एसेट लायबिलिटी अप्रोच. ऑब्वियस सा बात है, एसेट लायबिलिटी अप्रोच में यू हैव नॉट इनकॉर्पोरेटेड द फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी. गुडविल डज नॉट कम इन, ब्रांडिंग डज नॉट कम इन, सो दिस विल गिव यू अ वेरी बैड वैल्यूएशन फॉर द कंपनी, राइट? And this valuation will only be done if you don't have expectations from the future. You are probably thinking of liquidating the company. इसको जब अपनी इक्विटी में करते तो इसको लिक्विडेशन अप्रोच भी बोलते हैं कि आज का आज अगर कंपनी को लिक्विडेट कर दिया, बेच डाला, तो कितना मिलेगा, कितना सेटल करना पड़ेगा एंड कितना अल्टीमेटली नेट नेट में अपने पास बचेगा. दैट इज योर एसेट लायबिलिटी अप्रोच. फेयर वैल्यू ऑफ एसेट माइनस फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी गिव्स यू द वैल्यू ऑफ द कंपनी. हाँ, दिस मे नॉट बी अ बैड आइडिया इफ यू हैव अ कंपनी विच इज एकदम कमोडिटी सेंट्रिक. सपोज ज्वेलरी कंपनी का वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो उसमें फेयर वैल्यू ऑफ ऑल द गोल्ड माइनस लायबिलिटी विल बी गिविंग यू इक्विटी. वो मोर और लेस, मतलब आई नो कल्याण ज्वेलर्स का कर रहे हो तो शायद ब्रांड या गुडविल का कुछ इशू रहेगा, बिकॉज दे ऑल्सो हैव ब्रांडिंग एंड गुडविल एंड ऑल, बट स्टिल एक लेजिटिमेट, एक कुछ तो ढंग का वैल्यूएशन मिल जाएगा ना. बिकॉज गोल्ड का तो मार्केट प्राइस फेयर वैल्यू निकालना इज वेरी इजी, बिकॉज गोल्ड का तो ग्राम्स इनटू द प्राइस ऑन दैट डे, इट इज वेरी इजी. और लेट्स से म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए भी इजी होगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड कहां इन्वेस्ट करता है? शेयर्स में. शेयर्स का मार्केट प्राइस इज अवेलेबल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. सो म्यूचुअल फंड्स के लिए द टोटल फेयर वैल्यू ऑफ ऑल द शेयर्स माइनस लायबिलिटीज. लायबिलिटी क्या होगा म्यूचुअल फंड का? टेलीफोन चार्जेस पेबल, सैलरी पेबल, हल्का फुल्का यही बचा हुआ रहेगा इन लोग का. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इट बिकम्स क्वाइट इजी टू डू द वैल्यूएशन. सो ये एसेट बेस्ड अप्रोच है. ये सब इक्विटी में कराऊंगा, ये सब इक्विटी का पार्ट है, अभी ये कराना ही नहीं था. Are you getting it? So one is PV of future cash flows. One method is in comparison to the other companies. And third, the last one, the last resort would be कि सारा asset को बेचेंगे तो क्या आएगा? Minus liabilities. That is your value of equity shares. बोलिए, समझ में आ रहा है? Let's see एक बार क्या दिया है. Private equity इसमें market comparables approach underline करना. उसके साइड में लिखना, लिख दो P, PS, PB ratios. They have given EV/EBITDA ratio. That is also a technique we learn in equity. So don't worry, EV/EBITDA approach भी कराऊंगा. DCF में put an arrow and write value of anything today is equal to PV of future cash flows. Value of anything today equals to PV of all future cash flows. Value of anything today equals to PV of future cash flows. लिखा है यहां तक. एसेट बेस्ड अप्रोच में अनलाइन लिक्विडेशन वैल्यूज, लिक्विडेशन अप्रोच भी बोलते हैं उसको. उसके साइड में लिखो इक्वल्स टू वैल्यू FV asset minus FV liabilities. Equity value today is FV asset minus FV liabilities. FV fair value of assets minus fair value of liabilities. बोलिए, कंफर्टेबल टिल हियर? श्योर. अच्छा, वो क्वेश्चन देख लेते एक बार. बुक का क्वेश्चन है, माय फिगर्स एंड योर बुक का फिगर्स माइट बी डिफरेंट, बट लेट्स जस्ट सी इट. सो देख लो एक बार. बेसिकली 4 कंपनी दिया हुआ है, 4 कंपनी का एबिडा दिया हुआ है. एबिडा एंड ऑल का डिस्कशन अगेन इक्विटी में करेंगे. जस्ट ट्रीट इट लाइक अ प्रॉफिट फिगर राइट नाउ, कि कंपनी का एबिडा इज बेसिकली प्रॉफिट बिफोर यू हैव सब्ट्रैक्टेड इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन. आई विल डिस्कस इट इन इक्विटी. जस्ट ट्रीट एबिडा लाइक अ प्रॉफिट फिगर राइट नाउ. तो प्रॉफिट का एक कॉलम दिया और मार्केट प्राइस का एक कॉलम दिया है.
उसके बाद में व्हाट वी आर डूइंग इज कि बेसिकली अगर कंपनी का 100 प्रॉफिट था तो 1000 का उसका मार्केट प्राइस था, मतलब 10 टाइम्स है वैल्यूएशन, कंपनी इज पेइंग 10 टाइम्स, द वैल्यू ऑफ कंपनी इज 10 टाइम्स इनटू इट्स एबिडा। सेकेंड वाला 250 2000 दिया हुआ है, 2000 बाई 250 इज 8 टाइम्स, मतलब 8 टाइम्स ऑफ द कंपनी एबिडा इज कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी इज योर वैल्यू ऑफ द कंपनी। तो ऐसे करके 4 रेशियो निकाला और 4 रेशियो का एवरेज निकाला। एवरेज निकल के आ रहा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 8 6 8 का एवरेज विल बी 8। योर फिगर्स माइट बी डिफरेंट, माई फिगर्स आर 10 8 6 8। तो 10 टाइम्स 6 टाइम्स 8 टाइम्स 6 टाइम्स, मतलब मेरे को कंपनी X का वैल्यूएशन करना है। मैंने सिमिलर कंपनी ABCD मार्केट से उठाया। कंपनी A उसका प्रॉफिटेबिलिटी का 10 टाइम्स था, कंपनी B का वैल्यू 8 टाइम्स है, 6 टाइम्स है, 8 टाइम्स है। ऑन एन एवरेज 10 8 8 6 का एवरेज इज 8 टाइम्स। मतलब कंपनी इन दिस इंडस्ट्री वट एवर बी योर इनकम, योर वैल्यू ऑफ द कंपनी विल बी अराउंड 8 टाइम्स ऑफ दैट। सो मेरे को जिस कंपनी का वैल्यूएशन करना है उसका इनकम इज 175, तो उसका वैल्यू कितना होगा 175 इंटू 8 टाइम्स 1400 इज अ वैल्यूएशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो 4 कंपनीज का मेरे को इनकम, प्रॉफिटेबिलिटी, एबिडा एंड सेलिंग प्राइस या मार्केट वैल्यू दिया है। उसके रेशियोस निकाले, फिर उसका एवरेज रेशियो निकाला। सो एवरेज रेशियो टेल्स मी कि एबिडा का कितना टाइम्स होना चाहिए वैल्यू ऑफ अ कंपनी इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। ऑफ कोर्स आई हैव टेकन 4 सिमिलर कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री। सो इतना टाइम्स अगर वैल्यू होना चाहिए नॉर्मली, तो मेरा अगर इनकम इतना है तो मेरा वैल्यू कितना होना चाहिए, इतना टाइम्स, the average multiple times. So we calculate the average, we calculate multiples for different companies, take the average, multiply it with the profitability, get the answer. That's all we are doing. Tell me, comfortable? We'll do this extensive level ka sum in equity for this one. Sure, everybody okay? This completes your private equity.